Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is fungi, mycorrhizae and lichens. So first of all we will discuss fungi. What are fungi? Fungi are cryptogamic thallophytes which are heterotrophs. Cryptogams are spore producing organisms, plants which produce spores, and in them sex organs are hidden, as you studied algae, fungi, bryophytes and pteridophytes. Now we generally specially discuss fungi. Term fungus is a Latin word which means mushroom. The branch of biology in which we discuss fungi is termed as mycology. In mycology, many scientists put their effort to gain more knowledge and research about fungi. First of all, Clausius gave written literature about fungi. Due to this work, he is first great worker of fungi. And after that, Antonio Pierre wrote a book on systematics of fungi named as Nova Plantarum Genera. Due to this work, he is regarded as father of mycology. After that, De Bary worked on pathology and diseases caused by fungi in different plants and animals. Due to his work, he is termed as father of modern mycology. After that, Alois Fries worked on fungal taxonomy and he is known as Linnaeus of mycology. Alexopoulos and Mims worked on Myxomycetes and they are known as fathers of Myxomycetes. Now we will discuss general characters of fungi. First of all, we will study diversity of fungi. As you know, fungi are a diverse groups of organisms. They have over 1 lakh species. All these species are ubiquitous in their distribution. Ubiquitous means cosmopolitan, the species which can be found in a variety of habitats. Most of the fungi are terrestrial, but some are aquatic, epiphytic, and some are also parasitic. Epiphytic fungi are found on trees, as you see Armillaria on apple and Polyporus on many tree species. After that, we will see the nutrition in fungi. Fungi are, as you know, fungi are heterotroph. They get their food by extracellular digestion and absorption. Heterotrophic fungi are of many types. Among them, parasites are most common, as you see Mucor and Rhizopus. After that, you see Saprophyte, which feed on dead and decaying organisms. Some fungi are also predaceous, which attack on living organisms, e.g. nematoda, as you see Dactylaria, Dactylia, Arthrobotrys, and Pleurotis. Some fungi also grow in association with algae and form lichen association, which is a mutualistic association. While other fungi form association with the roots of higher plants, which is termed as mycorrhiza. After that, we will see fungal mycelium. Fungal mycelium is of two types. First is septate, which has cross walls. Other is non-septate, which lacks cross walls and cells are multinucleate. After that, we will see the mycelium of fungi, which is sometimes interwoven into a web-like structure, which is called plankton-chyma. Plankton-chyma is of two types. Number one, prosenchyma. Number one, prosenchyma. Number two, pseudoparenchyma. In prosenchyma, hyphae are loosely interwoven and there is some space among the hyphae, and the cells are visible in their structure, while in pseudoparenchyma mycelium are loosely packed and individual hyphae cannot be appeared and identified. In some fungi, during the resting condition, fungi form a hard mass of fungal tissue which is called sclerotia. It is to bear unfavorable condition, while other fungi form rhizomorphs. These are common in Armillaria. Now you will see the reproductive types and vegetative thallus types behavior. Due to this behavior, fungi are divided into two groups, eucarpic and holocarpic. In holocarpic fungi, the thallus is vegetative in initial stages, but in reproductive time period, the same vegetative thallus is converted into reproductive
thallus. This kind of behavior is termed as holocarpic behavior. Initial fungi, primitive fungi are holocarpic, while the advanced fungi are eucarpic. These fungi have separate vegetative and reproductive mycelia. Now we will see reproduction in fungi. Fungi show three kinds of reproduction: asexual, sexual, and vegetative reproduction. Vegetative reproduction occurs by fragmentation, fission, budding, and oidia chlamydospore formation. During fragmentation, hyphae breaks into small pieces and each of them grows into new mycelia. During fission, in yeast, cell divides into daughter cells which grow crosswalls among themselves and form new mycelia. During budding, an outgrowth develops from parent body and develops into new organisms. During oidia formation, hyphae undergoes segmentation and produce new organism. During asexual reproduction, fungi produce a variety of spores which are zoospores, aplanospores, conidia, and chlamydospores. Zoospores are uninucleate thick-walled spores which are produced in zoosporangia. They are characteristic imperfect stage spore in many fungi. Is Synchytrium, Endobioticum, Saprolegnia, Leptolegnia. अब आपने सेप्रोलेजनिया और लेप्टोलेजनिया का नाम सुना है, तो इनमें एक फिनोमेना होता है डायाप्लैनेटिज्म का। डायाप्लैनेटिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसके दौरान एक प्राइमरी जूओस्पोर सेकेंडरी जूओस्पोर में डेवलप होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं डायाप्लैनेटिज्म। उसके बाद हम आते हैं एप्लेनोस्पोर्स पे, जो कि थिन वॉल्ड और नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। ये राइजोपस और म्यूकर में पाए जाते हैं। तीसरी टाइप है स्पोर्स की कोनिडिया की, जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर पे। ये एस्परजिलस पेंसिलियम और पाइथियम का कैरेक्टरिस्टिक स्पोर हैं। कोनिडियोफोर पे पैदा होते हैं। कोनिडियोफोर पे एक बॉटल लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसे स्टिग्मेटा कहते हैं। अब हम आते हैं इनके सेक्सुअल या परफेक्ट स्टेज स्पोर्स में। अब सेक्सुअल बिहेवियर की फंजाई में बात की जाए तो फंजाई में सक्सेसिव सेक्सुअल डीजनरेशन होती है, यानी कि हम लोअर से हायर फंजाई की तरफ जब मूव करते हैं तो इनमें सेक्सुअल कैपेबिलिटी कम होती जाती है। एस्कोमाइकोटा से पहले जो डिवीजन है जाइगोमाइकोटा में सेक्स ऑर्गन्स कम्प्लीटली डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स डीजनरेट हो जाते हैं। एस्कोमाइकोटा में, बेसिडियोमाइकोटा में उससे ज़्यादा डीजनरेशन होती है। जब आप पहुंचते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स ऑर्गन्स टोटली एब्सेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल स्पोर फंजाई के। इनमें पहले नंबर पे एस्कोस्पोर, जो कि एस्कोमाइसिटीज़ में बनते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल होते हैं। और एस्कोकार्प में बनते हैं, जो कि सैक लाइक होती है। सैक लाइक एस्कोकार्प की वजह से एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं बेसिडियोस्पोर, जो कि बेसिडियो कार्प में बनते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ का कैरेक्टर है। बेसिडियम जो है क्लब शेप्ड होती है, इसलिए इसे कहते हैं क्लब फंजाई। इन फंजाई को हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे यूरिडो टेल्यूटोस्पोर, जो कि बाईन्यूक्लिएट और बाईसेल्ड स्पोर्स हैं। फंजाई डाइशियस और मोनोइशियस दोनों टाइप्स की हो सकती हैं। अब फंजाई में जो मेल गैमेटेंजिया है वो एंथ्रीडिया कहलाता है, जबकि पेंसिलियम में ये स्पर्मेशिया कहलाता है। फीमेल गैमेटेंजिया को ऊगोनिया कहा जाता है। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है 3 तरह की होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी में फ्यूजिंग गैमीट अपीयरेंस और फिजियोलॉजी में एक ही तरह के होते हैं, जबकि एनाइसोगैमी में फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, अपीयरेंस एक जैसी होती है। एनाइसोगैमी में अपीयरेंस और फिजियोलॉजी दोनों ही डिफरेंट होती हैं। अब इनमें जो फ्यूजन होती है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी हो सकती है, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के ज़रिए भी हो सकती है और प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन के ज़रिए भी हो सकती है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के दौरान गैमेटेंजिया एक दूसरे के करीब आके टिप से फ्यूज़ होते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म एक दूसरे से शेयर करते हैं, जबकि गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के दौरान एक फंजाई का, एक माइसिलियम का जो सेक्सुअल जेनेटिक मटेरियल है दूसरी फंजाई में टोटली ट्रांसफ़र हो जाता है। सोमैटोगैमी में फंजाई में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और सोमैटिक सेल्स ही सेक्स ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट करके गैमीट्स बनाते हैं। अब थैलस के लिहाज से फंजाई की 2 टाइप्स हैं, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक फंजाई में थैलाई मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, जबकि हेट्रोथैलिक फंजाई में फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली
थैलाई डिफरेंट होते हैं, कंपैटिबल एक दूसरे के लिहाज से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंज होते हैं। इस फिनोमेना को राइजोपस और म्यूकर वगैरह में ब्लैक्सलिया ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे इसका रिगार्ड दिया जाता है। अब हम आते हैं फंजाई की क्लासिफिकेशन की तरफ। फंजाई के 4 मेन क्लासेस हैं। पहले नंबर पे हैं जाइगोमाइसिटीज़, जो कि एल्गी लाइक फंजाई हैं, वाटरी इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इनमें जाइगोस्पोर कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट स्टेज स्पोर्स है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दोनों होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल स्पोर्स, जूओस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स दोनों बनते हैं, जबकि क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं। इनमें विप्लैश और टिनसेल टाइप स्टोमेटा दोनों होते हैं। विप्लैश और टिनसेल टाइप फ्लेजेला दोनों पाए जाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट वगैरह के ज़रिए होती है और जाइगोस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं सैक फंजाई यानी एस्कोमाइसिटीज़ की तरफ, जिनमें वेल डेवलप्ड थैलस होता है और यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर तलाई पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर यीस्ट हैं और मल्टी सेलुलर में आप देखेंगे तो आपको पेंसिलियम और एस्परजिलस मिलेंगे। अब इनके जो स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम कहते हैं एस्कोकार्प में। एस्कोकार्प की 3 टाइप हैं। एक फ्रूटिंग बॉडी की, एक पहले नंबर पर एपोथीशियम, पेरिथीशियम और क्लेस्टोथीशियम। क्लेस्टोथीशियम जो कैरेक्टरिस्टिक है पेंसिलियम एगेरिकस, पेंसिलियम और एस्परजिलस वगैरह का, सॉरी एगेरिकस वो बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर है, मैंने गलती से उसका नाम लिया। इनमें कोई फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाए जाते। उसके बाद इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन कोनिडिया और ओइडिया फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। कोनिडिया इनमें एक्सोजीनसली कोनिडियोफोर पे बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वही 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब हम आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की तरफ, जिन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बेसिडियोकार्प है क्लब लाइक होती है। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्पोर है वो बेसिडियोस्पोर्स हैं। इसके अलावा इनके माइसीलियम में एक स्पेशल सेप्टल पोर होता है, जिसे हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम, जो कि बैरल शेप्ड होता है और इनका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है क्लैम्प फॉर्मेशन या क्लैम्प कनेक्शंस। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इनकी मिसालें ओस्टिलागो, पक्सिनिया, एगेरिकस वगैरह। अब हम आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की तरफ, जो कि फंजाई इम्परफेक्टाई कहलाती हैं। आर्टिफिशियल ग्रुप हैं, क्योंकि किसी और ग्रुप के साथ ये रिजेम्बलेंस शो नहीं करती। इनमें परफेक्ट स्टेज स्पोज एब्सेंट हैं और इनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए थैलोस्पोज और कोनिडिया बनते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक कोनिडिया होते हैं म्यूरिफॉर्म कोनिडिया और डिक्टियोस्पोज। इनमें क्लेमाइडोस्पोज और आर्थोस्पोज भी बनते हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि इनके मेंबर्स कौन से। इनके मेंबर्स हैं सिरकोस्पोरा, कोलेक्टोट्राइकम, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूसेरियम। अब हम आते हैं फंजाई की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तरफ, कि इनके हार्मफुल और बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स क्या हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स। तो इनमें कुछ फंजाई एडिबल हैं, जैसे कि मोर्शेला एस्क्यूलेंटा, लाइकोप्रोडॉन और मशरूम्स की कुछ स्पीशीज़। जैसे कि आप देखते हैं एक फंजाई की डिश बनाई जाती है सूफू, जो कि म्यूकस से तैयार की जाती है। उसके बाद फंजाई एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। फास्ट एंटीबायोटिक वंडर ड्रग पेंसिलिन भी फंजाई से ली गई थी। इसके अलावा ये सैक्रोमाइसिस रिवाइजेज जो हैं, यीस्ट जिन्हें हम कहते हैं, ये फर्मेंटेशन में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा ये इंजाइम डायस्टेज, इन्वर्टेज और अमाइलेज प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। इन्वर्टेज एस्परजिलस फ्लेवर्स से हासिल किया जाता है, जबकि अमाइलेज सैक्रोमाइसिस रिवाइसेस से हासिल किया जाता है। इसके अलावा पेंसिलियम कैमेम्बर्टाई और पेंसिलियम रॉकफर्टाई चीज़ की फ्लेवरिंग में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कोजिक एसिड वगैरह जो हैं वो फंजाई से हम हासिल करते हैं। इसके अलावा आप सारे फंजाई के बेनिफिशियल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखेंगे। अब हम कुछ फंजाई को जेनेटिक रिसर्च में यूज़ करते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा कैरेसा को जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया गया था। इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर जो है वो मेटल डिटेक्शन, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटाशियम की डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा लिग्नोरियम जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होती है, पाइथियम फंगस को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके अलावा कुछ फंजाई जो हैं वो प्रीडेशियस होती हैं, जैसे डेक्टीलिया, डेक्टिलेरिया और आर्थोबॉट्रेस, जो कि नीमाटोडा को खाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग इनके गिर्द बना के एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस के ज़रिए। इसके अलावा कुछ फंजाई जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रोडोटोरियोला। इसके अलावा फंजाई मैनी प्लांट्स और एनिमल डिजीज़ भी काज करती हैं। इन डिजीज़ के आपने नाम याद करने हैं, काजेटिव एजेंट्स वगैरह, जैसे प्लांट्स और एनिमल डिजीज़ काज करने वाली फंजाई हैं। जैसे लूज स्मट है, ये उस्टिलागो से होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा से। लेट ब्लाइट ऑफ
पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, अर्ली ब्लाइट अल्टरनेलिया सोलानाई से, ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रामिनस। इसके अलावा जो ह्यूमन में डिजीज़ हैं, डैंड्रफ मेलिसीजिया ग्लोबोजा की वजह से होता है, एस्परजिलोसिस जो कि एक लंग डिजीज़ है एस्परजिलस की वजह से, रिंगवर्म माइक्रोस्पोरम की वजह से होती है, ईयर इन्फेक्शन जो है वो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से होते हैं। एनिमल डिजीज़ में एथलीट्स फुट यानी कि एक फंगल डिजीज़ जो है वो टीनिया रूब्रम की वजह से होती है। इसके अलावा आपने देखने हैं फंजाई के कॉमन नेम, जैसे कि कप फंजाई कौन सी हैं, शेल फंजाई कौन सी हैं, सीजर्स मशरूम कौन सी है। इसके बाद हम आते हैं फंजाई के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की तरफ। फंजाई दो तरह के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाती हैं, एक एलजी से जिसे हम कहते हैं लाइकन, दूसरा ये हायर ट्रीज़ के साथ, हायर वेस्कुलर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन डेवलप करती हैं जिसे हम कहते हैं माइकोराइज है। लाइकन्स में एलजी और फंजाई का एसोसिएशन है जिसमें दो पार्टनर होते हैं, एल्गल पार्टनर को हम कहते हैं फोटोबायोंट और फंगल पार्टनर को हम कहते हैं माइकोबायोंट। एल्गल पार्टनर जो है फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई को फूड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि फंगल पार्टनर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फंजाई एलजी को न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब लाइकन्स की हम टाइप देखेंगे, दो टाइप्स हैं। एक तो है इनकी पहले नंबर पे कि एसोसिएशन में कौन कौन से जानदार इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फंगल पार्टनर और एल्गल पार्टनर। फंगल पार्टनर के लिहाज से दो टाइप्स हैं। एस्कोलाइकन्स में जो फंजाई हैं वो एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं, बेसिडियोलाइकन्स में बेसिडियोमाइसिटीज़ की फंजाई इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखेंगे इनकी टाइप्स सबस्ट्रेटम के लिहाज से। सबस्ट्रेटम के लिहाज से ये सेक्सिकोलस जो कि रॉक पे ग्रो करती हैं, कॉर्टिकोलस जो बार्क पे ग्रो करती हैं, टेरिकोलस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, लिग्निकोलस लिग्निन पे। अब हम देखेंगे थैलस के लिहाज से इनकी टाइप्स। लेप्रूज लाइकन स्केल्स की तरह होती हैं, क्रस्टूज लाइकन क्रस्ट लाइक होती हैं और सबस्ट्रेटम से टाइटली अटैच्ड होती हैं जैसे ग्रेफिस और राइजोकार्पन। फॉर्यूज लाइकन ट्विस्टेड और लीफ की तरह की होती हैं जैसे परमिलिया। रूटिकूज लाइकन रिबन लाइक ब्रांच और बुशी अपीयरेंस देती हैं जैसे उसनिया और क्लेडोनिया। अब हम देखते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहले नंबर पे तो ये पॉइनियर स्पीशीज़ हैं रॉक के इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कोई चीज़ ग्रो नहीं करती, ये फर्स्टली ग्रो करके रॉक्स की ब्रेक डाउन करती हैं और सक्सेशन को पॉसिबल बनाते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल इंडिकेटर हैं पोल्यूशन का। इसके अलावा इनकी कुछ स्पीशीज़ जैसे कि एविरीना है वो ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसी से परफ्यूमरी का काम भी लिया जाता है। इसके अलावा इनसे एक और एसिड लिया जाता है उसनिक एसिड जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब हम आते हैं माइकोराइज़ा की तरफ। माइकोराइज़ा म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान। इस एसोसिएशन की दो टाइप्स हैं, एक्टोमाइकोराइज़ा और एंडोमाइकोराइज़ा। एक्टोमाइकोराइज़ा में जो फंजाई हैं वो रूट के अराउंड एक कवरिंग बनाती हैं मेंटेल, जिसे शीथ या मेंटेल बनाती हैं और रूट के सेल्स में पेनिट्रेट नहीं करती, जबकि एंडोमाइकोराइज़ा जो हैं वो रूट के सेल में पेनिट्रेट करती हैं। एक्टोमाइकोराइज़ा में एक नेटवर्क बनता है जिसे हम कहते हैं हार्टिग नेट। अब हम देखते हैं एंडोमाइकोराइज़ा को, इनको हम आर्बस्क्यूलर माइकोराइज़ा या वैम भी कहते हैं, वेजिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइज़ा। जब ये फंगल हाइफी जो हैं रूट सेल्स में पेनिट्रेट करते हैं तो ड्वार्फ ट्री लाइक स्ट्रक्चर या आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं, इन्हीं की वजह से इन्हें वैम कहा जाता है।